Good morning, grade 8. Assalamu alaikum class. How are you? Today we are going to solve our remaining question. In our previous class, we have solved the question from exercise 1B. And today we will solve the remaining question from exercise 1B. Today is our third unit session. Okay, we are going to solve part E from exercise 1B, question 1. Part E is given in page number 12. Those who have books, open page 12. Grade 8 page, open page 12. See in page 12. Exercise 1B, question 1, part E. This is your class work, grade 8. It's your class work. Okay. I just to highlight to let you know that that's your class work. So yeah, class work is starting from this question. So part E is given to you minus 3x squared minus 7x plus 9 equals to 0. Okay, now we are going to solve this question by applying quadratic formula. Okay, as we have solved in previous classes. Okay. Just we will solve this question by using quadratic formula. So like we solved in our previous session. Okay, what's the quadratic formula? Quadratic formula is x equals to minus b plus minus b square under root b square minus 4ac by 2a. First, what you need to do, first you will move minus 3x squared to right hand side, minus 7x and plus 9 to right hand side. Okay? In your first step, you need x to be positive value. You need x to with positive value. For that, you will move minus 3x squared minus 7x plus 9 on your right hand side. So when you move these three terms in right hand side, so it would be a additive inverse and the sign would be changed. Okay? Its sign would be changed to positive, it's positive and it's negative. सही है? देखिए किस तरह से साइन चेंज होगी. इसको हम राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे माइनस 3x स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेड 8 it would be 3x squared this with positive sign. ठीक है? Then minus 7x would be plus 7x. ठीक है, ग्रेड 8 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये सारी टर्म हमने क्या की, मूव कर दी राइट हैंड साइड पे, तो इनकी साइन एडिटिव इनवर्स होके चेंज हो गई. ठीक है, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी विल फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, so according to formula we have a equals to a equals to 3, b equals to 7,
and C equals to -9, -9. The value of C we have is -9 according to quadratic formula. ठीक है? According to quadratic equation. So now place the values in above formula as x equals to, ठीक है, we will place the value of b 7 in place of -b. सही. Then place plus minus under root. The value of b is 7 in square according to formula. ठीक है? 7 square minus 4 a. The value of a we have is 3. And c, the value of c we have is 9, -9, -9. By 2a. 2a. The value of a is 3. ठीक है? ये ए बी सी की वैल्यूज हमने फॉर्मूले के अंदर प्लेस कर दी. जहां बी था बी की वैल्यू प्लेस कर दी, ए था ए की वैल्यू प्लेस कर दी, सी की जगह सी की वैल्यू प्लेस कर दी. ठीक है? विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अकॉर्डिंगली. ठीक है बेटा? इसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है? इसके बाद सेम जो प्रोसेस है प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायरिंग रूट. ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व कर लेंगे. प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 7 square means 7 multiplying by 2 times. 7 by 7 equals to 49. 49 minus plus minus. Negative is multiplying with positive and negative equals to positive. Minus plus minus 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 plus. So that would be plus. Now 4 by 3 is 12. 12 by 9 is 108. 4 by 3 is 12 and 12 by 9 is 108 by 2 by 3 is 6. ठीक है? कल भी सॉल्व किया था ये आपने बेटा. ये क्वेश्चन हमने कल अपने प्रीवियस सेशन में भी सॉल्व किया था. ठीक है? x equals to -7 as it is plus minus under root. Okay, 8, 108 and 49. When you add 108 and 49, that equals to 157. 157 157 by 6. By 6.
x equals to -7 प्लस माइनस, ठीक है। नाउ फाइंड द स्क्वायर ऑफ 157, ठीक है। टेक आउट योर कैलकुलेटर and find the square of 157 by using your calculator right now. Hurry up. ग्रेड 8 आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए बेटा। The square root of 157 is 12.52. 12.52 by 6. Okay. So now we will easily find the value or two values of x to place positive and negative value separately. ठीक है। -7 now प्लस एट, सबसे पहले प्लस की साइन के साथ 12.52, ठीक है, बाय 6, ठीक है। और another value of x is -7, then negative sign. It means क्या होता है, ठीक है, वन टाइम आप प्लस ऐड के साथ ऐड करेंगे, वन टाइम आप माइनस करेंगे, ठीक है। 7 minus 12.52 by 6. क्लियर है ग्रेड 8? ये डिवाइड की साइन होती है बाय 6, ठीक है। मैंने ये लाइन ड्रॉ करने की बजाय सही, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द लाइन, ठीक है, आई जस्ट प्लेस द साइन ऑफ डिवीजन, ठीक है। कैन सॉल्व, ठीक है। देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 12.52, 5.52, ठीक है। You will have 5.52. When you subtract -7 from 12.52, so you will have 5.52, ठीक है। And with positive sign, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि हम साइन कौन सी प्लेस करते हैं, ग्रेटर वैल्यू की साइन। ग्रेटर वैल्यू क्या है 12.52, ठीक है, इंस्टेड ऑफ -7। -7 इज द लेस वैल्यू, इसलिए हमने पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ 5.52 को यहाँ नोट किया, क्योंकि पॉजिटिव साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ है। 12.52 इज द ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और इसको भी ऐसे सॉल्व कर लें। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो एड 7 एंड 12.52, एड कीजिए 7 प्लस 12.52 इक्वल्स टू 19.52, 19.52, ठीक है। अब यहाँ कौन सी साइन आएगी, नेगेटिव। क्यों आएगी, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ भी माइनस साइन है और लेस वैल्यू के साथ भी माइनस साइन है, ठीक है। सो वी विल प्लेस नेगेटिव साइन, ठीक है। नाउ डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इसको हमने एज इट इज नोट कर लिया, ठीक है बेटा। इसके बाद x इक्वल्स टू, ठीक है। नाउ 5.52 डिवाइडेड बाय 6 divided by 6 equals to 0.92, 0.92, and another value of x would be, ठीक है, 19.52 divided by 6, that would be 3.25.
3.25, ठीक है। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन के साथ होगी क्योंकि ग्रेटर और लेस दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो आप इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है ग्रेड 8। ठीक है, फाइनली यू हैव फाउंड two values of x by using quadratic formula. ठीक है, so we have solved question A part E. ठीक है, now we are going to solve part F from question 1 exercise 1B. Part F we have is minus 5x square plus 10x minus 2. Minus 5x square plus 10x minus 2 equals to 0. ठीक है, that's your question, part F. Now we are going to solve this question by applying quadratic formula like previous we have solved. Okay. According to quadratic equation we have A equals to, ठीक है, according to quadratic equation हमारे पास A क्या होगा ग्रेड 8 -5, ऐसा ही है। We have A equals to -5, B equals to 10 and C equals to -2. ठीक है, is it clear? Sorry, first of all, sorry beta. First of all, what we need to do, we need to x with positive value. ठीक है, हमें x की वैल्यू को पॉजिटिव करना है. For that we will move the whole term into right hand side. ठीक है, when we move the whole term into right hand side, so they would be changed to positive 5x square plus minus 10x plus 2 equals to 0. ठीक है, ऐसा ही है. देखें, when we move the whole term to right hand side, so their sign would be changed to plus 5x square minus 10x and plus 2 equals to 0. ठीक है, now according to quadratic formula we have the value of A equals to A equals to 5 B equals to minus 10 and C equals to 2. ठीक है, A, the value of A is 5, B is minus 10 and C is plus 2, positive 2. ठीक है, okay, now applying quadratic formula. According to quadratic formula, the quadratic formula we have is ठीक है, so according to quadratic formula we place the value of A, B, C into the formula. The value of B is minus 10. देखिए, ये जो माइनस है ना बेटा, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है. ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर आपकी कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, माइनस B की वैल्यू. ठीक है, the value of B you have is minus 10. The value of B क्या है आपके पास, इसलिए हमेशा B की वैल्यू ब्रैकेट में, ये जितनी भी वैल्यूज आप प्लेस करते हैं सब ब्रैकेट में प्लेस किया गया है.
इसके लिए, इससे आपको आसानी होगी, आप साइन को इजिली मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। नाउ द वैल्यू ऑफ b अगेन इज -10 ठीक है, स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला b is in square form, ठीक है। So we place the value of b that is -10 and place the square according to formula, ठीक है। Now place minus for AC, ठीक है। a की वैल्यू ब्रैकेट में लिखे, a की वैल्यू क्या गिवन है 5 एंड c की वैल्यू क्या गिवन है आपको 2, ठीक है। To a the value of a is 5, सही, place the value of 5 in the formula, ठीक है। So according to formula we have placed the whole value of a b c accordingly, ठीक है बेटा। ओके, सो ग्रेड 8 हमने ये कहाँ तक सॉल्व किया, ठीक है। x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, 10 बाई 10 100 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इसलिए 100 आ गया यहाँ, ठीक है। ये स्क्वायर जो है यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। इसको हमने ओपन कर लिया, इसके बाद नेगेटिव साइन, देन 4 बाई 5 इज 20, 20 बाई 2 इज 40, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 बाई 5 इज 10, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम अंडर रूट, ये अंडर रूट हमारे पास सिंबल है, ठीक है, इट मीन्स कि अंडर रूट सब इस पूरे पर है, ठीक है। अंडर रूट किस पर है 100 माइनस 40, ठीक है, इस पूरे पर अंडर रूट हमारा प्लेस हुआ हुआ है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 100 इक्वल्स टू 60, 10 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 100 इक्वल्स टू 60, ठीक है, बाय 60 बाय 10 एज इट इज, कॉपी कर लिया हमने। इसके बाद x इक्वल्स टू अब हम क्या करेंगे क्लास, सही, वन टाइम प्लस के साथ लिखेंगे, ठीक है, और वन टाइम माइनस के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम प्लस के साथ लिख रहे हैं 10 प्लस, अच्छा, अंडर रूट 60 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अभी तो हम इसको अंडर रूट 60 ही लिखते हैं, 10 प्लस अंडर रूट 60 डिवाइडेड बाय divided by 10 as it is, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, ठीक है, एज इट इज लिखेंगे यहाँ, लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। प्लस माइनस मीन्स क्या होता है बेटा, 10 प्लस अंडर रूट 60 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, और x पे x, ठीक है, another value of x will have to be found by 10 minus under root 60 divided by 10, ठीक है। प्लस माइनस के थ्रू हमें x की दो वैल्यू फाइंड आउट होती हैं, ठीक है, इसलिए हम वन टाइम प्लस के साथ लिखते हैं और सेकंड टाइम माइनस के साथ लिखते हैं, ठीक है। 10 प्लस अंडर रूट 60 बाई 10, 10 माइनस अंडर रूट 60 बाई 10, अंडर रूट 60 की वैल्यू क्या होती है ग्रेड 8, अंडर रूट 60 इक्वल्स टू 7.74, अंडर रूट 60 इक्वल्स टू
7.74 10 एज इट इज लिखेंगे, प्लस के साइन, अंडर रूट 60 की वैल्यू मालूम की है, दैट इज 7.74, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10, x इक्वल्स टू, ठीक है, 10 माइनस 10 माइनस अंडर रूट 60 की वैल्यू क्या है, 7.74, 7.74 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, ग्रेड 8 सॉल्व कर लीजिए इसको, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। 8 कर दें, 10 प्लस 7.74 इक्वल्स टू 17.74, 10 प्लस 7.74 इक्वल्स टू 17.74 बाय 10, और x इक्वल्स टू, ये भी सीधा सॉल्व होगा, सब्ट्रैक्ट कर दें 7.74 फ्रॉम 10, subtract 7.74 from 10 equals to 2.26, 2.26 by 10, ठीक है। Now x equals to 17.74 divided by 10, ठीक है, 17.74 divided by 10 divided by 10 equals to 1.77, ठीक है। We found first value of x, that is 1.77, 1.77. Another value of x would be 2.26 divided by 10. तो divide कराएं, 2.26 divided by 10 equals to 0.22, 0.22, 0.22, ठीक है। That's your answer. Finally, we have found two values of x by using quadratic formula. Okay, grade 8, is it clear, beta? ठीक है।
grade 8 सही है. You can see, ठीक है, you can see the question to solve each of the following equations. ठीक है, पार्ट ए. ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी आपने खुद करना है, ग्रेड 8. ठीक है, हमने यहाँ एक्सरसाइज 1 बी के बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए एंड बी आपने खुद सॉल्व करना है. ठीक है, सिर्फ मैं क्वेश्चन 2 का पार्ट ए आपको सिर्फ क्वेश्चन 2 का पार्ट ए, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी. ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी. ग्रेड 8 आगे से आपने खुद सॉल्व करना है. ठीक है, पार्ट ए इज गिवन टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x equals to 21. So the question is given to you x square plus 5x equals to 21. ठीक है, अब आप इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह करते हैं आप यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 0 रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे. ठीक है, 21 would be moved to left hand side. सही है, such as x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x माइनस 21 इक्वल्स टू 0. ठीक है बेटा, 21 को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर दिया. ठीक है, तो ये प्लस साइन के साथ था, जब मूव करते हैं तो एडिटिव इनवर्स होता है, साइन चेंज होती है. ठीक है, तो ये माइनस 21 हो गया. ठीक है ग्रेड 8. सो अब आपकी इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 21 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, यू हैव a, द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, ठीक है, वैल्यू ऑफ a क्या होगी बेटा, a इक्वल्स टू 1. ठीक है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स x के साथ क्या है, 1 है. ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 5 and c equals to minus 21. ठीक है, the value of c equals to minus 21. ठीक है, according to quadratic equation we have the values of a b c, सही है, equals to 1, 5 and minus 21. ठीक है बेटा, अब now you have to solve this question by yourself by applying quadratic formula. ठीक है, अब उसी तरह होगा, quadratic formula अप्लाई करेंगे, प्लेस करेंगे a b c के वैल्यूज और 2 values of x फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, क्लियर है. सो द होमवर्क, ठीक है, नोट डाउन योर होमवर्क, दैट इज डू क्वेश्चन 2 पार्ट ए सी बाय योरसेल्फ. ठीक है, खुद सॉल्व करना है. ग्रेड 8 क्वेश्चन 2 पार्ट ए सी फ्रॉम एक्सरसाइज 1b. ठीक है, क्लियर है ग्रेड 8. ठीक है बेटा, दैट्स योर होमवर्क. ठीक है, कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा फीडबैक सेशन में. ठीक है, फीडबैक सेशन में मुझे इसका आंसर चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन 2 पार्ट ए का आंसर मुझे फीडबैक सेशन में ग्रेड 8 के सब स्टूडेंट से चाहिए. अदरवाइज योर अटेंडेंस वुड बी मार्क एज एब्सेंट. ठीक है, अदरवाइज योर अटेंडेंस वुड बी मार्क एज एब्सेंट. ठीक है, एब्सेंट काउंट करूंगी मैं अगर आप कोई भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेगा ग्रेड 8 से. ठीक है, 1-2 स्टूडेंट के अलावा किसी का फीडबैक सेशन में रिस्पॉन्स नहीं आता. आई नीड ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्स इन फीडबैक सेशन, otherwise you will be marked as absent. Is it clear class? Okay, Allah Hafiz.